Good morning, students. Myself, Dr. Suman Sharma. You know, students, on the last turn, I taught you introduction and certain types of structures of monosaccharides. Today, we will study a special kind of monosaccharides that is known as glucose in general. So, today I will deliver my lecture on introduction to glucose and related chemical reactions. Right? Now, glucose. Carbohydrates have been given non systematic names, although the suffix "ose" is generally used. The most common carbohydrate is glucose, C6H12O6. Applying the terms defined above, glucose is a monosaccharide and aldohexose. Note then the function and size classification are combined in one word, right? Aldohexose and a reducing sugar. The general structure of glucose and many other aldohexoses was established by simple chemical reactions, right? The following diagram illustrates the kind of evidence considered, although some of the reagents shown here are different from those used by the ओरिजिनल साइंटिस्ट, राइट. यहाँ पर कुछ जो है वो रिएक्शन बता रखी हैं जो ये प्रूव करती हैं कि इट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, राइट. ये यहाँ पर ग्लूकोज है C6H12O6, ठीक है. जब इसका ऑक्सीडेशन होता है ब्रोमीन एंड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर ग्लूकोनिक एसिड बनता है, राइट. ग्लूकोज की जब रिएक्शन होती है HNO3 के साथ तो ग्लूटेरिक एसिड बनता है. ग्लूकोज की रिएक्शन जब HI के साथ हीट किया जाता है तो हेक्सेन बनता है, राइट. जब इसको NaBH4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉर्बिटॉल बनता है. और ये जो सॉर्बिटॉल है ये एक्सिस एसिटिक एनहाइड्राइड और पिरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्ट करके हेक्सा एसीटेट बना लेता है, राइट. फिर ग्लूकोज जो है वो एक्सिस एसिटिक एनहाइड्राइड एंड पिरिडीन के साथ रिएक्ट करके पेंटा एसीटेट बनाता है, राइट. और यहाँ पर HCN के साथ जो है रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और साइनोहाइड्रीन बनता है. तो ये जो सारी रिएक्शन है ये अभी मैंने आपको एक शॉर्ट वे में बताई हैं. ये सब ये प्रूव करती हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका ग्लूकोज का है, राइट. हॉट हाइड्रोआइटिक एसिड HI was often used to reductively remove oxygen functional groups from a molecule, and in the case of glucose this treatment gave hexane in low yield. From this it was concluded that the 6 carbons are in an unbranched chain, right. The presence of an aldehyde carbonyl group was deduced from cyanohydrin formation, right. And its reduction to the hexa alcohol sorbitol, also called glucitol, and mild oxidation to the monocarboxylic acids, that is gluconic acid, right. Somewhat stronger oxidation by dilute nitric acid gave the diacetic glucaric acid, supporting the proposal of a 6 carbon chain, right. The 5 oxygens remaining in glucose after the aldehyde was accounted for were thought to be in hydroxyl groups, since a pentaacetate derivative could be made, right. These hydroxyl groups were assigned one each to the last 5 carbon atoms because geminal hydroxyl groups are normally unstable relative to the carbonyl compound formed by loss of water, right. By clicking on the above diagram, it will change to display
the suggested products and the gross structure of glucose. The four middle carbon atoms in the glucose chain are centers of chirality and are colored red, right? तो ये सारी जो रिएक्शन जो बताई हैं वो जो है प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, प्रेजेंस ऑफ 6 कार्बन एटम, प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप है ना, एंड प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप, इन सब को जो है वो प्रूफ करती हैं, राइट? एंड हम कह सकते हैं कि जो पर्टिकुलर जो कंपाउंड है जिसका कि हम जो है फॉर्मूला देते हैं C6H12O6, दैट इज ग्लूकोज, राइट? एंड ग्लूकोज एंड अदर सैकेराइड्स आर extensively cleaved by periodic acid thanks to the abundance of vicinal diol moieties in their structure, right? This oxidative cleavage known as the Mala-Parade reaction is particularly useful for the analysis of selective oxygen substituted derivatives of saccharides since either functions do not react, right? So now come to the next slide. अब हम इसको जो है थोड़ा सा जो है वो डिटेल फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है? व्हाट इज मोनोसैकेराइड? इट इज़ अ प्लस माइनस ग्लूकोज और एल्डोहेक्सोज, ठीक है? अब ग्लूकोज इज बाय फार द मोस्ट अबंडेंट मोनोसैकेराइड यूनिट प्रेजेंट इन नेचर देन एनी अदर ऑर्गेनिक ग्रुप. In learning about the structure plus minus glucose, we shall at the same time learn about its properties, since it is from these properties that the structure has been deduced, right? Glucose is a typical monosaccharide, so that in learning about its structure and properties, we shall be learning about the structure and properties of the other member of this family, right? Now it is a structure of glucose. फर्स्ट है इसके अंदर ग्लूकोज हैज़ द मॉलिकुलर फार्मूला C6H12O6, राइट? इज शोन बाय एलिमेंटल एनालिसिस एंड मॉलिकुलर वेट डिटर्मिनेशन. ये जो स्ट्रक्चर है ये एलिमेंटल एनालिसिस से प्रूफ होता है, और यदि इसका मॉलिकुलर वेट डिटरमाइन किया जाता है तो भी जो मॉलिकुलर वेट है दैट करस्पॉन्ड्स टू द C6H12O6, राइट? दिस फार्मूला. नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब हम देखते हैं यहाँ पर इसकी रिडक्शन, ठीक है ना? The complete reduction of glucose with red phosphorus and hydriodic acid gives normal hexane, right? This shows that the glucose has 6 carbon atoms in a straight chain. यहाँ पर ये है इट इज़ ग्लूकोज. जब इसकी रिएक्शन करवाई जाती है रेड फास्फोरस और हाइड्रोआइडिक एसिड की प्रेजेंस में, ठीक है ना? फर्स्ट तो जो है इसको जो ये फर्स्ट जो है वो तो सॉर्बिटॉल बनता है, फिर ये रिएक्ट करता है रेड फास्फोरस और HI की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर नॉर्मल हेक्सेन बन जाता है. नॉर्मल हेक्सेन का बनना क्या शो करता है कि ग्लूकोज के अंदर जो है 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं एक स्ट्रेट चेन के अंदर, राइट? फिर आता है प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है ना, एल्डिहाइडिक ग्रुप. रिडक्शन विद फैलिंग सॉल्यूशन रेड प्रेसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड, right? Now reduction with failing solution red precipitate of cuprous oxide is obtained, ठीक है? जब ग्लूकोज की रिएक्शन फैलिंग सॉल्यूशन के साथ करवाई जाती है, फैलिंग सॉल्यूशन कंटेन सॉल्यूशन ए फैलिंग एंड सॉल्यूशन बी फैलिंग सॉल्यूशन, तो जब यहाँ पर ये रिएक्शन होती है तो हमको रेड पीपीटी मिलता है क्यूप्रस ऑक्साइड का. इट शोज द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप इन ग्लूकोज, राइट? ग्लूकोज है फैलिंग सोल्यूशन, यहाँ पर ग्लूकोनिक एसिड बनता है और यहाँ पर क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड पीपीटी आता है, ठीक है? नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. रिडक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है ना? टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. ये जो टेस्ट हैं ये हम अपनी लेबोरेटरीज के अंदर भी करते हैं टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, राइट? AgNO3 प्लस NaOH इट गिव्स AgOH प्लस NaNO3, राइट? फिर ये जो AgOH है
ये किसके अंदर सिल्वर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है प्लस वाटर, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देखते हैं इट्स अ ग्लूकोज। जब ग्लूकोज की रिएक्शन जो है Ag2O से करवाई जाती है, अमोनिकल यहाँ पे जो है, ठीक है ना, ये जो है Ag2O से इसकी रिएक्शन होती है तो ये ग्लूकोनिक एसिड बनता है और 2Ag यानी सिल्वर मिरर जो है हमको टेस्ट ट्यूब के अंदर दिखाई देता है। ये रिएक्शन हम लोग लेबोरेटरी में भी करते हैं और हमको बहुत ही सुंदर जो है, जब टेस्ट ट्यूब के अंदर ये रिएक्शन परफॉर्म करी जाती है तो पूरी जो टेस्ट ट्यूब है वो सिल्वर मिरर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, राइट। तो इट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, राइट। फिर आता है रिडक्शन विद टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है ना। तो ये अभी हमने पहले वाली रिएक्शन के अंदर देखा है कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का जो सॉल्यूशन है दैट इज़ टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है। ये रिएक्शन हुई AgOH NaOH3 बन गया। फिर ये AgOH जो है वो Ag2O के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर हमको ये ग्लूकोनिक एसिड और सिल्वर मिरर बनता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं इस रिएक्शन को यदि बैंडिट सॉल्यूशन के साथ कराया जाता है, रिडक्शन विद बैंडिट सॉल्यूशन obtained by mixing aqueous solution of copper sulfate 0.5 H2O and aqueous solution of sodium citrate and sodium carbonate Na2CO3, राइट। तो यहाँ पर ये रिएक्शन शो कर रखी है। ग्लूकोज जो है इसकी रिएक्शन जब बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ करवाई जाती है तो क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड PPT मिलता है और साथ में ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बनता है, ठीक है ना। ये यहाँ फॉर्मेशन ऑफ रेड PPT कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप इन ग्लूकोज, राइट। ये वाला जो टेस्ट है इसको भी हम अपनी लेबोरेटरी के अंदर करते हैं। फिर है रिडक्शन विद बारफोर्ड्स रिएजेंट, ठीक है ना। बारफोर्ड्स रिएजेंट क्या होता है? इट इज़ अ न्यूट्रल क्यूप्रिक एसिटेट डिजॉल्व इन 1% एसिटिक एसिड, राइट। इट इज़ अ बारफोर्ड रिएजेंट। जब ग्लूकोज की रिएक्शन हम बारफोर्ड रिएजेंट से कराते हैं तो भी हमको क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड PPT मिलता है, ठीक है ना। तो ये भी ये शो करता है कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। नाउ ऑल द अबव रिएक्शंस confirms the presence of a terminal aldehyde group in glucose, ठीक है। Now come to the next slide। फिर है यहाँ पर रिएक्शन विद HCl, ठीक है ना। हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन पर ग्लूकोज जो है साइनोहाइड्रेन बनाता है। ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन साइनाइड टू फॉर्म ग्लूकोज साइनोहाइड्रेन। दिस confirms the presence of either an aldehyde or a keto group in the molecule and this is a Killiani reaction, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन जो है वो Killiani रिएक्शन के नाम से भी जानी जाती है। यहाँ पर ये है ग्लूकोज, इसकी रिएक्शन हमने HCl के साथ कराई तो ये यहाँ पर ग्लूकोसाइनोहाइड्रीन बन जाता है। ये कंफर्म करता है कि पर्टिकुलर जो आपका कंपाउंड है उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है या कीटो ग्रुप प्रेजेंट है, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर देख रहे हैं हम रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद हाइड्रोक्साइल अमीन। ग्लूकोज रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइल अमीन टू फॉर्म ऑक्सीम्स, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ एन एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप इन द मॉलिक्यूल। यहाँ पर ग्लूकोज की रिएक्शन जब हाइड्रोक्साइल अमीन के साथ करी जाती है तो ये ग्लूकोसो ऑक्सीम बनता है, ठीक है ना। ऑक्सीम फॉर्मेशन होता है और ये भी क्या कंफर्म करता है कि पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर दिया गया है उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट रिएक्शन। रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रेजीन। जब ग्लूकोज की रिएक्शन फिनाइल हाइड्रेजीन के साथ करवाई जाती है तो ग्लूकोसाजोन बनता है। यहाँ पर ग्लूकोज रिएक्ट्स विद 3 मोल्स मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रेजीन टू गिव ग्लूकोसाजोन और ओसाजोन फॉर्मेशन, राइट। ये ग्लूकोज है, इट इज़
फिनाइल हाइड्रेजीन, यहाँ पर 3 मोल्स इसके यूज़ में लेते हैं, और बनने वाला प्रोडक्ट क्या होता है, ग्लूकोसाजोन, ठीक है ना, ओसाजोन फॉर्मेशन होता है। एंड इट ऑल्सो कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप, राइट। तो ये जो है अभी हमने आपको ग्लूकोज की कुछ रिएक्शन बताई हैं, और जो रिएक्शन है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, राइट। थैंक्स डियर स्टूडेंट्स।